Hello students, today we will start chapter tissue of ninth standard. Okay, that's a basic that we will learn here. Okay, as we know that the all organisms are made up of cells. Yeah, all the organisms are made up of cells, and together cells form tissue. Okay, so these are the tissue means the group of cells. Okay, which together perform a special function. Okay, and that will be called as a tissue. Yes. Okay, so we will see here what do you mean by tissue. That is, in unicellular organism, a single cell perform all basic functions. That is, for example, amoeba. It's a single cell only, but instead of as it is single cell, then also it can perform all the functions. Okay, that is the movement, intake of food, gaseous exchange, excretion, all the functions. And because it can perform all the functions, it is considered as a living organism, though it is made up of one cell. In multicellular organisms, we see a specialized cells. Yeah, we see a specialized cells. Okay, which carry out specific function. The specialized cells which carry out a special function, they do it very efficiently. Okay, whatever function they are performing, for example, heart is pumping the blood, so it performing efficiently. Liver is doing its function, digestive system is doing its function, stomach is doing its function, lungs is doing its function. So all those which are doing their function, they are doing their function efficiently. Human being muscle cells control and relax cause movement, nerve cells carry out the messages, blood flows to transport oxygen and food, hormones, wastewater, etc. Okay, so there is a question in our textbook that is name the tissue which conduct the food and water from part to the other part in the plant, and we call them as a vascular tissue. Okay, the tissue which conduct the water and food throughout the plant, okay, through its height, it's called conducting tissue, or you can say vascular tissues, which is phloem and xylem. We will see later in this chapter. Okay, so now what do you mean by cells? The cells specialized in one functions and are often grouped together in a body. A particular function is carried out by cluster of cells at definite place in body. This cluster of cells called tissue. Okay, so cluster of cells at definite place performing different specialized function, particular function, that is called tissue. Okay, so we see here that is the group of cell at definite place performing particular function. Okay, so these 3 points together make a definition of the tissue. Okay, so what are the examples of tissue? Blood is a tissue, beta. Phloem in part, plant is a tissue. Muscles is a tissue. Okay, so if we see the difference between plant and animal, because why we have a different kind of tissues in plant and animal? Okay, why we have a different kind of tissue in plant and animals? So that we can see here, the difference between plant and animals is tissue is different because the plant and animals are itself is different because their functions are different. For example, plants do not move, they are stationary, they are fixed, while animals need to move for searching of food, for their mates, for the shelters, etc. Okay, the plant consume less energy because they are not moving, they are stationary. Okay, while animals are moving, they consume more energy as compared to plants. Okay, since the plants have upright and they have a large quantity and supportive tissue, though plant is you will see the plant have a large mass beta, but in that large mass it's a and you can see the giant plant also, it has a lot of dead tissues. Then they are supportive tissues. Okay, so this is not there in animals. And animals, whatever tissues are present, they are all living and they are performing some function. They need energy. So that is also a reason that plant do not require more energy. Okay, now the growth of the plant limited to certain region, while the animal it's not like that. If they are growing from everywhere. If the growth is stopped, then they will are not going to be grow no more. Okay, so
There are some tissues in plant that divide throughout their life. Okay, these tissues are localized in certain region. For example, beta axillary bud, apical bud, flower birds, they are growing. Okay, while animals, if they growing, they are growing. Otherwise, the growth will stop. Then the growth will stop for the whole body. A certain region will not grow then. Okay, cell growth in animal is more uniform. There is no such demarcation of dividing एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल्स. ऐसा कुछ अलग अलग नहीं है उसमें कि कुछ डिवाइड होंगे कुछ नहीं होंगे. नहीं होंगे तो पूरा बॉडी एक साथ ग्रो करेगा बेटा, अगर नहीं होगा तो कोई भी ग्रो नहीं करेगा. सो द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इज लेस स्पेशलाइज्ड इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट देन एनिमल. ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इज सो मोर स्पेशलाइज्ड और लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स देन इवन इन द वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट. ठीक है, तो ये लोग ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है एज कम्पेयर टू प्लांट. So whenever we will see the plant tissues are made up of two meristematic tissues and permanent tissues. Meristematic tissues are three types, that is apical, lateral and intercalary, while permanent tissues are of two types, simple permanent tissue and complex permanent tissue. Okay, the meristematic tissues are divided on the basis of tissue, the region where they are present. Okay, and the simple tissues are again divided into three, that is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Okay, parenchyma again divided into two, chlorenchyma and arrenchyma. Okay, while this collenchyma and sclerenchyma are the types of simple permanent tissue. This complex permanent tissues, okay, they are made up of two, xylem and phloem. Now we'll see first meristematic tissue. Meristematic tissue, they are dividing tissue beta. They have capacity to divide. They have capacity to divide to form a new cells. They can add new cells, so they are present wherever the plant is growing. Okay, the apical meristematic tissues, the name suggests apical. Apical मतलब ऊपर, ठीक है, टिप पे. So they will be present at the root tip and shoot tip. Okay, यानी स्टेम के टिप पे और रूट के टिप पे प्रेजेंट होंगे वो. उनका फंक्शन है कि भाई लेंथ को ग्रो करना, स्टेम की लेंथ में और रूट की लेंथ में क्या करना, ग्रोथ करना. लेटरल मेरिस्टेम बेटा, तो लेटरल मतलब साइड का. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, स्टेम और रूट की जो है गिर्थ में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, इंक्रीज कर पाते हैं. हाँ, और इसको कैम्बियम भी कहते हैं. ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम को कहते हैं कैम्बियम भी कहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट दी इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स. ठीक है, ये क्या होता है बेटा, कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जो नोड्स में प्रेजेंट होते हैं, सीन इन सम प्लांट्स विच इज़ लोकेटेड नियर द नोड्स. ओके, और ये क्या होता है, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूँ तो घास खाते हैं. ठीक है, गाय घास खाती है, हम तो घास को जो ग्रासेस हैं उनको बीच में से काट देते हैं. फिर वो ग्रास वहाँ बीच में से काट के बाद भी वहीं से वापस आगे बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे ना बीच में से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो वहाँ से सेल्स को डिवाइड करके नए सेल्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. ठीक है, ना प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होंगे बेटा, ये इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होगा, ये बहुत एक्टिव सेल्स होंगे, इनके पास थिन सेलुलोज वॉल होगी, इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होंगे और इनके पास वैक्यूल होता नहीं है क्योंकि ये डिवाइडिंग सेल्स है बेटा. ठीक है, डिवाइडिंग सेल्स में वैक्यूल्स होता नहीं है. नाउ द परमानेंट टिश्यू. ठीक है, नाउ परमानेंट टिश्यू सेल्स क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइड होकर नए सेल्स बनाते हैं, पर वो नए सेल्स पर डिवाइड नहीं होते बेटा, वो कोई ना कोई काम के लिए डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं. डिफ्रेंशिएट यानी कि कुछ काम के लिए अपने अपने काम का कोई फंक्शन करने लगना, डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं रखना. ठीक है, तो वो सेल्स को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू. सो दैट सेल्स फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू take up a specific role and lose the ability to divide. As a result, they form permanent tissue. What is differentiation? The process of taking up permanent shape, size and function. Permanently shape ले लिया, size ले लिया, function perform करने लग गए. Now they are no more dividing and those cells are called, those tissues are called differentiated tissues. Okay. Now we'll see simple permanent tissues. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू देखें हम तो ये कहाँ होते हैं बेटा, जनरली दे आर प्रेजेंट एज ए फ्यू लेयर्स बीनीथ द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के नीचे ये मोस्टली रहते हैं, जैसे कि हो गया बेटा कॉर्टेक्स हो गया, एंडोडर्मिस हो गया, पेरिसाइकल्स हो गए. ठीक है, ये सारे क्या है, कंडक्टिंग टिश्यूज़ के ऊपर और एपिडर्मिस के नीचे जो टिश्यूज़ है वो कौन से होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़. ठीक है, सो मतलब ये सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स के बने होते हैं, इसलिए तो सिंपल बोलते हैं. जो कॉम्प्लेक्स जो हैं वो एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स के बने होते हैं. पैरेन्काइमस टिश्यू मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये. इनकी प्रॉपर्टी है बेटा
इनके पास रिलेटिवली अनस्पेशलाइज सेल्स होते हैं, सेल वॉल इनकी पतली होती है, ठीक है, ये लिविंग सेल्स है बेटा, और दीज आर लूजली पैक्ड, ठीक है, जिससे उनके बीच में लार्ज स्पेस होती है। जैसे अब मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको, ऐसे अरेंज होती है, ऐसे बहुत दूर दूर एक दूसरे से, लाइक दिस। तो इनके बीच में आप ये देख रहे हैं, ये स्पेस, इसको बोलते हैं इंटर सेल्यूलर स्पेस। तो इनके अंदर इंटर सेल्यूलर स्पेस होती है क्योंकि ये लूजली पैक्ड है। कैसे हैं ये लोग? लूजली पैक्ड है। ठीक, ओके। सो मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं, इंटरसेलुलर स्पेस इनके अंदर होती है। ये जनरली ये फूड स्टोर करते हैं और मेरे ख्याल से परमानेंट टिश्यू हर जगह प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है। क्लोरेनकाइमा, अगर पेरेन्काइमस टिश्यूज़ के अंदर, अगर पेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर क्लोरोप्लास्ट आ गए, क्लोरोप्लास्ट यानी कि मेसोफिल सेल्स आ गए, ठीक है, तो क्लोरेनकाइमा, ये दोनों ज्वाइन कर लो, इज इक्वल टू क्या हो गया? क्लोरेनकाइमा। मतलब ये क्या कर रहे होंगे? फोटोसिंथेसिस करते हैं ये सेल्स, ठीक है। सो द पेरेन्काइमा विच कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इनके पास क्लोरोफिल्स होंगे बेटा, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। एरेन्काइमा क्या होता है? एरेन्काइमा का मतलब होता है कि भाई जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके पेरेन्काइमा के अंदर, ठीक है, उनके पेरेन्काइमा के अंदर एयर कैविटी होती है। क्या होती है? एयर कैविटीज़, और उसको क्या बोलते हैं हम? एरेन्काइमा, ओके। Done. So in aquatic plants, large air cavities are present in parenchyma to help them to float, जो से वो फ्लोट कर पाते हैं पानी के ऊपर, ठीक है। और ऐसे पेरेन्काइमा टाइप्स के सेल्स को क्या बोलते हैं बेटा? एरेन्काइमा। नाउ विल सी कोलिनकाइमा। कोलिनकाइमा जो है थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट को, एक फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट। आपको बताऊँ मैं, जो पत्तों की, मतलब जो लीफ होते हैं उसकी जो डंडी और पेटियोल होती है, डंडी, ठीक है, उसके अंदर वो फोल्ड हो सकते हैं। जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं बेटा, वो ग्रीनिश होते हैं, वुडी नहीं होते हैं, उनके अंदर भी ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? अलाउ करते हैं लिटिल बेंडिंग ऑफ द प्लांट, जैसे टेंड्रिल्स हो गया, स्टेम्स के क्लाइंबर्स हो गए, टूटते नहीं हैं पर वो बैंड कर देते हैं। ऐसा नहीं कि बैंड किया तो टूट गया, ऐसा, ठीक है। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं, ठीक है। ये लीफ स्टॉक बिलो एपिडर्मिस के नीचे लीफ स्टॉक में प्रेजेंट होते हैं ये, और इनकी प्रॉपर्टीज़ है, दे आर लिविंग एलोंगेटेड इरेगुलर, ठीक है। इनके बीच में स्पेस नहीं होती क्योंकि बेटा, और या कम होती है क्योंकि इनके कॉर्नर्स पे क्या होती है? थिकनिंग होती है। इरेगुलर क्या होती है? थिकनिंग होती है, ठीक है, इसलिए इनके पास होता नहीं है। जबकि स्क्लेरेन्काइमा कम्प्लीटली डेड टिश्यू ही है, बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, कम्प्लीटली पैक्ड होंगे, बीच में सीमेंटिंग मटेरियल जैसा भी होगा, मतलब कि थिकनिंग भी काफ़ी होगी इसके अंदर। सो दीज आर यूजफुल फॉर द प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू द प्लांट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं वो, ठीक है। इनकी लोकेशन है, ये स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर बंडल के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, वो वेन्स, लीव्स की वेन्स में प्रेजेंट होते हैं, सीड्स और नट्स की हार्ड कवरिंग में। जितनी भी हार्ड चीज़ें आप देख रहे हैं, कोकोनट का हस्क, जो आप नारियल का छिलका निकालते हैं, ठीक है, वहाँ सब में ये प्रेजेंट होते हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज़ है बेटा, जिससे टिश्यूज़ आर डेड, सो दे हैव अ लॉन्ग एंड नैरो, दे आर, ये लंबे लंबे हैं, और उनका ल्यूमेन मतलब उनके अंदर सेल का जो अंदर मटीरियल होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, हम साइटोप्लाज्म नहीं बोलेंगे, टिश्यू के अंदर का जो मटीरियल है वो क्या होता है? पतला होता है, ठीक है, क्योंकि डेड टिश्यू से बेटा ये तो ज़्यादातर पार्ट क्या डिपोजिशन से बना होता है, थिकनिंग ज़्यादा होती है इनके अंदर। सो दे आर थिकन ड्यू टू लिग्निन, ओके। लिग्निन एक कार्बोहाइड्रेट मटेरियल है, एंड उनके बीच में कोई इंटरनल स्पेस होती नहीं है, ठीक है। सो अभी के लिए इतना रखते हैं हम, ठीक है, और आगे का जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर वीडियो अपलोड करके बता दूँगी। बाय बाय।